Very good morning, everyone. So today we will solve some numericals related with electric potential. So just to go through, I have written the numericals here. The first numerical is calculate electric potential at the surface of a gold nucleus of radius. आपके पास गोल्ड न्यूक्लियस दी है, क्लियर? उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस गिवन है 6.6 into 10 raised to power minus 15 meter and its atomic number is 79. Now you know very well electric potential, the formula for electric potential, this V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Clear? Here we need the values. अब आपको पता है आपके पास क्या है, Q गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है किसका? गोल्ड का. तो इस एटॉमिक नंबर में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो Q is equal to Z into E. Z is the atomic number, so we can write it 79 into, you know very well, charge on electron. The magnitude of the charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So this is the value of charge. Radius is also given, that is R is equals to 6.6 into 10 raised to power minus 15 meter. So therefore we will substitute the value in equation number 1 and we will find capital V is equal to, and you also know the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 raised to power 9, and Q we have calculated, that is 79 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. Radius is also given 6.6 into 10 raised to power minus 15. ठीक है? Solve this. After solving you will get it as 1.723 into, देख लीजिए, 10 raised to power 7 volt. So this is the answer which you have to find out. Quite simple numerical. Have you noted down? So second numerical is there. Second numerical, the electric potential at 0.1 meter from a point charge. आपको फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट. अब की बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज? पोटेंशियल गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. देखिए बेटा, हियर इट इज पॉजिटिव 50. आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज. तो अब की बार चार्ज का नेचर कैसा है? दैट इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? पॉजिटिव होती है. क्लियर? सो हियर वी हैव अगेन, हियर capital V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Now in this question we have to find out the magnitude of Q. Clear? So it implies this Q is equals to, it is V into 4 pi epsilon naught into R. Clear? अब देखिए V आपके पास given है, so we can say this Q is equals to, V आपकी बार given है बेटा, that is positive 50 volt. So it means it is 50 multiplied with, here it is 4 pi epsilon naught. अब आपको पता है 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised to 9 units. So from here we can say 4 pi epsilon naught is equal to 1 divided by 9 into 10 raised to 9 units. Clear? So we can say it is 1 upon 9 into 10 raised to power 9. Here it is small r. Small r is the distance
where the electric potential is given and it is 0.1 meter. So it is 0.1. Clear? After calculating, you will get the answer, that is equals to 0.55 into 10 raised to power minus 9 कूलम. ठीक है? So it is equals to 10 raised to power minus 9 कूलम. Clear? क्या प्रॉब्लम है? तो भाई उधर कराना ऑनलाइन क्लास से यार बंद हो गई यार. कोई बात नहीं. तो कोई बात नहीं, यू जस्ट स्टे देयर. हम मैं तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, आप डिस्टर्ब नहीं यार. कौन है? दे आर कमिंग फॉर टेकिंग द एडमिशंस. तो पढ़ाने को दो यार. सो q इज इक्वल टू 0.55 into 10⁻⁹ कूलम. क्लियर? और पोटेंशियल पॉजिटिव थी तो चार्ज भी कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव. ठीक है? तो आल्सो q इज पॉजिटिव. ठीक है? q क्या है? पॉजिटिव है. समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हमारे पास हो गया सेकंड न्यूमेरिकल. नाउ वी जस्ट गो थ्रू द थर्ड न्यूमेरिकल. थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, जस्ट गो थ्रू इट. Third numerical is there. A regular hexagon of side 10 सेंटीमीटर. आपके पास कोई रेगुलर हेक्सागन गिवन है और जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. तो चलिए पहले तो हम रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है? इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन मींस इट विल हैव ऑल द साइड्स इक्वल. तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है? Hexagon it means it have 6 sides. तो इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है और इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है that is equals to how much it is given here 10 सेंटीमीटर. ठीक है? हेक्सागन की साइड कितनी है बेटा? that is 10 सेंटीमीटर. अब क्या बोल रहे हैं आगे? It have charge 5 microcoulomb at each of its vertices. इसके हर एक कॉर्नर पर, वर्टिसेस पर चार्ज रखा हुआ है और वो भी क्या है? That is the same charge is placed everywhere and this charge Q is equal to 5 microcoulomb. Clear? एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है, उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, हर एक कॉर्नर के ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है. नाउ इट इज सेइंग दैट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन के सेंटर के ऊपर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. क्वाइट सिंपल. आपको पता है जब भी मोर देन 1 चार्जेस होते हैं वी मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अभी हमारे पास 6 चार्जेस गिवन है हर एक कॉर्नर के ऊपर. तो सिंगल चार्ज की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सो वी कैन से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V हियर के टोटल पोटेंशियल कितना है. ठीक है? तो देखिए कितना हो जाएगा फॉर रेगुलर हेक्सागन. फॉर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के लिए R की वैल्यू कितनी होगी? ये हमें चाहिए. दिस इज R. देखिए रेगुलर हेक्सागन है देन इट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है? इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. क्लियर? इट मींस R इज आल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है? R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? इट विल आल्सो इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज रेगुलर हेक्सागन. ठीक है? तो फॉर रेगुलर हेक्सागन आपके पास क्या आ जाएगा? इट हैव ऑल द साइड्स इक्वल. क्लियर? रेगुलर हेक्सागन में सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड विथ. देखिए हम बात करेंगे सिंगल चार्ज की वजह से, सिर्फ एक चार्ज की वजह से
दिस इज द क्यू हेयर, यहां पर भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। तो इसलिए सिंगल क्यू के लिए निकाल लेंगे इस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम पॉइंट पी बोल सकते हैं एट द सेंटर, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्लियर? नाउ हियर द वैल्यू ऑफ क्यू इज, आपके पास गिवन है Q is equals to, that is 5 microcoulomb, and it is 5 into 10 raised to minus 6 coulomb. Clear? R is equals to, देखिए रेगुलर हेक्सागन है तो I have told you this is equilateral triangle, तो इसलिए सारी की सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो R भी कितना है 10 सेंटीमीटर, और you can write it as 10 into 10 raised to minus 2 meter. Now you can substitute the value, therefore equation 1 implies, equation 1 में हम value substitute करेंगे and we will find out the final answer, that is V is equals to 6 multiplied with 1/4 pi epsilon naught, means 9 into 10 raised to power 9. Q you have calculated, that is 5 into 10 raised to power minus 6. R we have, that is 10 into 10 raised to power minus 2. Clear? So make the calculation. After calculation you will find it is equals to 2.7 into 10 raised to power 6 volt. So this is the answer here. Clear? So it is the total electric potential due to regular hexagon. Clear? Now the fourth numerical is, हाँ जी सभी ने कर लिया, just note it down it. Fourth numerical is also there. So the question number 4 is there. Two charges, आपके पास 2 चार्जेस गिवन है, दैट इज एक चार्ज है 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and second charge is negative 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb. 2 charges given है आपके पास, one is positive charge and second one is negative charge. तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, and both are separated by a distance of, here it is given, both are located 16 centimeter apart. दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है that is 16 centimeter. So one charge Q1, second charge Q2, both are separated by a distance of 16 centimeter. इस तरह से सिचुएशन गिवन है। अब ये बोल रहा है at what point on the line joining them is electric potential zero. ये बोल रहा है Q1 Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालिए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी गिवन है, that is V is equals to 0. ठीक है, तो मींस you have to find out the value of this distance from either charge. ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन में बोली हुई है कितनी होनी चाहिए, 0. तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 ही होती है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो लेट अस कंसीडर द पॉइंट P. लेट एट point P the electric potential is 0, that is V is equals to 0 at point P. ठीक है, अब ये पॉइंट P है हमारे पास, तो यहां देखते हैं वो V कितनी है। तो इफ x, इसको हम x मान लेते हैं डिस्टेंस को, Q1 चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस हमने x मान लिया, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा बेटा,
ये 16 सेंटीमीटर है, दिस इज x सेंटीमीटर, सो इट इज 16 माइनस x। सो हमारे पास आ गया इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1, ठीक है, देन 16 माइनस x is the distance of point P from Q, ठीक है। तो आपके पास गिवन है टोटल पोटेंशियल कितनी है, 0 है, तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट P कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास गिवन है जो कि हमने यहां भी राइट किया। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, हाँ जी R आना था बेटा, R की जगह क्या है x, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Q1 इज x, सो इट इज x प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, Q2 डिवाइडेड बाय पॉइंट P का Q2 से डिस्टेंस है 16 माइनस x, सो इट इज 16 माइनस x एंड इट इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो बात को? नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस, इट इंप्लाइज, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 0 है उधर, तो इसलिए हमारे पास आ गया Q1 अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x, हो गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1, x1, Q2, x2, clear, so it implies Q1 is given in the question, that is 5 into, this is 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb, where Q2 is given, it is negative 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb, like this. So we can say it is 5 into 10 raised to power minus 8 divided by x is equals to minus and negative charge is there, negative 3 into 10 raised to minus 8 divided by 16 minus x. तो देखिए 10 raised to power minus 8 कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, so we can say 5 upon x is equals to 3 upon 16 minus x, और सॉल्व कीजिए and find out the value of x, it will come out to be 10 centimeter. So this is, you can say it is 5 into 1680 minus 5x equals to 3x, or you can say this minus 5x minus 3x equals to minus 80, or minus 8x equals to minus 80, or you can say x is equal to 10 centimeter. So this is the distance of point P from charge Q1, ठीक है, तो from charge Q1, यहां पर ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1 है, और Q2 से निकालना हो तो आल्सो फ्रॉम Q2 it is how much, 16 minus x means it is 16 minus 10 means it is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए Q1 से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और Q2 से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव डिस्कस्ड, हैव यू नोटेड डाउन? ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। We have discussed about the electric field of
ए स्फीयर, हमने एक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, इफ यू रिमेंबर, क्लियर। और उसमें हमने मेटालिक स्फीयर की बात की थी, फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता था, 0 होता था। सो वी कैन से इनसाइड द स्फीयर E inside is equals to 0, clear। तो दिस वी हैव स्टडीड, 0 होता था। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो व्हाट E is equals to minus dV upon dr, which is called as electric potential gradient। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, here it is 0, so 0 is equal to minus dV upon dr, or we can say dV upon dr equals to 0। किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इट मींस वो कौन है, कांस्टेंट। इट इंप्लाइज दिस V is equals to constant। तो इन केस ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर, हमारे पास कोई चार्ज्ड कंडक्टर दिया हुआ है, वेदर इट इज ए सॉलिड कंडक्टर और इट इज ए हॉलो कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज लाई करता है, इनसाइड उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर नो चार्ज रिमेन देयर, ठीक है। चार्ज जो है हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे लाई करता है, तो इसलिए यहां पर V कितना होता है बेटा, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। समटाइम्स द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ऑफन इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, क्लियर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, क्लियर। समटाइम्स देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज ऑफनली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, क्लियर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। बताइए अगर आपके पास, क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्लियर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल दैट V is equal to 0 but E is not equals to 0? Can you give me the answer? देखिए the answer of this question, we have studied about the electric potential at equatorial line of the electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है, at equatorial line of electric dipole। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट V इक्वल्स टू 0, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था 1/4 pi epsilon naught, if you remember it। What in case electric potential is 0, ठीक है। So this was the question कि क्या ये पॉसिबल है, yes it is possible। So we can say yes it is possible। At equatorial line of electric dipole, electric field is not equals to 0 but electric potential is equals to 0, clear। So this is about your electric potential। Now we will start the next topic, that is the capacitance। So till that, bye bye।